students. So today we are going to start with our illustration exercise 2.3. Right? I hope you all have understood the illustrations what I have explained in the last videos. Okay, so that was our bar diagram, graph illustrations of all the graph portion. Right? So I hope those who have understood the graph, those who have understood that illustration portion might have done that in your graph book. And one more thing I want to tell you that the circle diagram and the pie diagram that nobody will do in the notebook. Some students are asking me that Miss, can we draw that in the notebook also? It is possible to do in the notebook, no need of that graph and all. Then also you draw it in the graph book only, because in the graph book we are doing that single line is there na? In that graph के अलावा जो दूसरा पेज होता है ना उसमें तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो. In one page you can draw 2 graphs. अगर ये पाई डायग्राम है, this circle diagram, pie diagram and pictogram, this you can draw in the single lines. That line is given other than the graph page. The other pages are there na? In that pages you can draw this a circle diagram, pie diagram and pictogram. Right? No need of doing any calculation. We don't have any calculations also in all these things. है लेकिन बट वो टेबल में ही आ जाता है. If possible you can use that in one page you can draw 2 diagrams also. ठीक, अगर बुक्स नहीं है, बुक्स के शॉर्टेज है तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो. And why I told you to draw the circle also in that diagram, because all the graph will come in one book, है ना. तो दूसरे ग्राफ के लिए हमको दूसरा बुक सर्च करने की जरूरत नहीं. All the graph will come together in one book. That was my main intention to ask you to draw in the graph book. Right? ग्राफ का टॉपिक आएगा तो डायरेक्टली तुम्हें ग्राफ बुक निकाल के बैठ के ही वो लर्न करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर exercise 2.3. Right? First sum is following is the data on the graph of employees working in various government departments. Present it with a suitable diagram. Right? It is said that you have to present it in a suitable diagram. I told you in a bar diagram or a multiple bar diagram, they are not giving the method, means in which type you have to draw. Graph ka type nahi batayenge. Okay. So here departments are road transport, railway, income tax, finance and planning. And the number of employees is 4,000, 6,000, 3,000, 2,500 and 1,500. Okay. Now see the graph. This only I want to explain you. ये graph line में ही आ गया ना. And I have prepared also, I have prepared one PPT also that I will show you afterwards. Okay. So here we got that line also. I thought of drawing in on the board, but it is already given in the that graph paper ही draw किया हुआ है ना. That's why I have made use of this PDF also again. So now what you have to give, first you have to give the heading. Right? So heading is simple bar diagram showing the number of employees working in different departments of government. Simple bar diagram हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये एक ही डेटा से रिलेटेड एक ही कॉलम है. डेटा से रिलेटेड अगर 2 कॉलम्स होता तो दैट विल बी ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम, है ना. So on x axis and y axis, so first you have to draw x axis, y axis you have to draw. Right? On x axis we have different departments, that is road transport, railway, income tax, finance and planning. Then on y-axis, for taking the numbers on y-axis, first of all you have to see which is the minimum number, that is 1,500 and maximum is 6,000. So you can go easily for 1,000. Right? 1,000 के गैप में तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो. सी ये जो हमारा ग्राफ पेज है, इसमें जो हमारे फर्स्ट लाइन जो था हमने उसको देखो, ये लाइन को हमने 1,000 कंसिडर किया. तो नेक्स्ट एक भी ब्लॉक छोड़े बिना दूसरे सेम ब्लॉक में ये नेक्स्ट ब्लॉक में हमने लिया है 2,000. और कई स्टूडेंट्स ये जो जीरो है इसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, उसके बाद ये स्टार्ट करते हैं. दैट इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ ड्राइंग अ ग्राफ. ओके, आफ्टर दैट जीरो लाइन you have to immediately start with here. If you are skipping this line, then in each and every where you have to skip one line. If you are not skipping one line, then you don't have to skip any of the lines. समझ में आया. बेसिकली अगर तुमने यहाँ पे जीरो के बाद अगर एक लाइन स्किप करके 1,000 लिखा है तो फिर से 1,000 के बाद एक लाइन स्किप करके ही 2,000 लिखना होता है. ये फॉर्मेट में जाना है. और अगर यहाँ पे तुमने स्किप नहीं किया, देखो यहाँ पर एक भी लाइन बीच में नहीं छोड़ा हुआ है, तो फिर 1,000 2,000 ऐसा सीक्वेंस में ही विदाउट लीविंग एनी स्पेस दे हैव रिटर्न दैट नंबर्स. ओके, राइट. So here they have taken the number 1,000 to 6,000, that is 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 and
6000। और यही चीज तुम लोग अगर एक एक लाइन स्किप करके लिखोगे, जैसे कि यहाँ पर तुम अगर 1000 लिखोगे और उसके बाद तुम्हें अगर लाइन स्किप करना है तो यहाँ पर 1000 हो गया, तो ये लाइन स्किप करके फिर यहाँ पर 2000 आएगा। समझ में आया? फिर ये लाइन स्किप करके फिर यहाँ पे 3000, ये तो काफी बड़ा जाएगा। पेजेस है हमारे पास, अगर सपोज हम लोग को एक ही ग्राफ पूछा है एग्जाम में और हमको इस तरीके से ड्रॉ करना है तो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, स्किपिंग वन लाइन। 6000 तक ही लेना है तो हमारे पास तो काफी बड़ा पेज है, राइट? तो फिर यू कैन टेक दैट, यूज दैट फुल पेज। तो जिससे इससे क्या होगा कि तुम्हारा ग्राफ बड़ा भी दिखेगा, क्लियर भी दिखेगा, नीट एंड टाइडी योर ग्राफ विल लुक, राइट? तो सॉरी, so now see 1000 they have taken. Now the first is road transport. Road transport में first one क्या है? 4000. So we have marked here 4000, right? 4000 ये है. The next is 6000. ये easily मिल जाएगा मैं, देखो 6000. Then third is 3000. Income tax है 3000. Then comes the finance, that is 2500. से यहाँ भी 2500 कैसे लेंगे हम? ये जो 2000 के बाद का जो ये लाइन है, ये वाला लाइन, ये 2, ये 3, ये 4, ये पांचवे लाइन में 3000 है। 1 2 3 4 5, तो फिर ये 1000 का गैप है ना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे हम, तो हमको पता चलेगा कि एक लाइन का, ये कैलकुलेशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे पता चलता है कि एक लाइन का नंबर क्या आएगा, मतलब उसका वो रेट क्या आएगा। जो देखो ये 1000 है, डिवाइडेड बाय 5 लाइन्स है ना, तो डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 200 आएगा ना। तो वो जो एक लाइन है उसको हम 200 कंसिडर करेंगे। वो भी, इसका भी वैल्यू है, देखो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, तो ये 200 हमने ड्रॉ किया ना। वैसे ही तो 2500 है, तो ये 2000 हो गया, ये 2100, 200, 300, 400, नहीं सॉरी 2200, 400, 600, 800 एंड 1000, तभी 3000 हुआ। तो अभी 2500 है ना, तो 2000 और ये जो सेकंड लाइन है उसको हमने 200 का डिफरेंस बोला है। ये जो बीच के जो ये सारे लाइन है ना, इसको 200 का डिफरेंस, ये जो छोटे छोटे लाइन दिख रहे हैं ना, वो सारे 200 के डिफरेंस में है। देखो तो फिर ये 2200 होगा, ये फर्स्ट वाला लाइन। ये सेकंड लाइन है 2400, फिर क्या बोला है 2500 ना, तो ये इसके बीच में जो लाइन आएगा ना, एकदम माइनर सा लाइन है, देखो ये होगा 2500 का, देखो ऐसे ही ड्रॉ किया होगा, राइट? ये ऊपर के लाइन में जो लाइन है उसमें भी नहीं है, जो दो छोटे छोटे जो दो लाइन है उसके बीच का लाइन भी है, दैट इज कॉल्ड 2500। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने क्या बताया तुमको कि ये जो दो लाइन है, दो लाइन के बीच में गैप, मतलब डिफरेंस क्या है, 2000 से 3000 का डिफरेंस क्या आएगा? 1000। 1000 डिवाइडेड बाय, हमारे पास लाइन कितनी है? 5 है, तो डिवाइड करेंगे तो हमको 200, यानी एक लाइन को हम 200 काउंट करेंगे। तो कैसे हुआ? 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 एंड 3000। और 2500 करना हो तो 2002 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में, सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करना हो। वैसे ही देखो 1500 लास्ट प्लानिंग में 1500, दैट मीन्स व्हाट? 1000, then 1200, 1400, 1600, 1800 and 2000, right? Then they are called 1500 na, so 4 and 6. So this is 4 and this is 6, 2 का गैप है ना, तो इसके बीच में जो लाइन है वहां पे देखो, वहां पे ड्रॉ हुआ है, नहीं 2, सॉरी आई मिस्टेक, देखो ये 2, 4 और ये 6 है ना, तो इसके बीच में का ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ किया, समझ में? तो दिस आई वांट टू एक्सप्लेन यू, राइट? ग्राफ कईयों को आता ही होगा, फॉर दो स्टूडेंट्स हु डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट व्हिच नंबर you have to take and what is the difference between the numbers and how you have to take the numbering, that for that children only I have explained this, right? Many students know how to draw the graph properly, neatly and tidily. Okay, so this is our first illustration and here we have to write scale also, है ना? इसके बिना तो ये ग्राफ भी अधूरा हो जाएगा। स्केल इज एक्स एक्सिस में डिपार्टमेंट्स, वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर, 1000 एम्प्लॉइज, right? So this is your full graph. Okay, now let's move to our next question.
Let me rub this. Now our next question. See. The data on the profit of a company is as under presented by an appropriate diagram. Again, they are saying that draw it in an appropriate diagram. Okay. So here, one data related only one column is given. So it is a we can say that it is a bar diagram, simple bar diagram, right? So first we will give the heading, simple bar diagram showing the yearly profit in crore rupees during the year 2010 to 15, right? Year is given, see in the table year is given 2010 से लेकर 15 तक 10 11 12 13 14 15, and the next column is a profit that is in crore rupees 10 5 minus 2 4 8 and 6, right? So we will draw our x-axis, y-axis, right? This is our x-axis, this is our y-axis, and the x-axis we have drawn the year 2010 11 12 13 14 15, and on the y-axis we will write the profit. And listen children, here one more thing is that minimum is in minus, so zero के नीचे जो भी number होता है वो minus में होता है, and you have to see that minimum is minus 2 and the maximum is 10. तो हम 2 2 का डिफरेंस लेंगे, तो 0 से ऊपर होगा 2 4 6 8 and 10, और 2 के 0 के नीचे होगा -2, अगर और नीचे नंबर्स लेने हैं तो -4 -6 -8 ऐसे. Okay, so now the 2010 में profit था 10, so we will draw a bar of 10. This is exactly the same that number. Then 2011 5 means in the last also, in the last the sum also I have explained that line importance है. और see here है, here it is given that 6 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या है 2, और इसमें नंबर्स कितने 1 लाइंस कितने होते हैं 5. तो अगर डिवाइड करोगे दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 0.4 समथिंग आएगा. तो फिर यहाँ पर क्या लेना है 1 2 3 4 5 लाइन है ना. देखो इन्होंने कैसे लिया है 1 2 3 और 2 और 3 के बीच का लाइन लिया है ना. 2 और 3 के बीच का लाइन लिया है. क्या आया था 2 डिवाइडेड बाय 5 क्या आया था 0.4 कुछ आया था ना, और इसमें बोला है कि 5, तो 5 हमने कैसे कंसिडर किया है 2 और 3 के बीच के लाइन पे 0.5 है ना. 2 और 3 के बीच के लाइन को हमें कंसिडर करना है 5th पॉइंट. या तो फिर तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, 2 लाइन के बाद जो तीसरा लाइन होगा कितने पॉइंट्स पे देखो इसमें कितने लाइन है 1 2 3 4 है ना. तो फिर 4 है बीच में जो हमारे दो नंबर्स के बीच में 4 लाइंस है ना, तो सेकेंड लाइन के ऊपर होगा फिर 5 है ना. हाफ दोनों का हाफ हो जाएगा ना. 4 और 5 के बीच में 4 और 6 के बीच में आता है 5, तो 2.5 करके कंसिडर करेंगे. 2.5 के बाद का 2.5 के बाद यानी 2 और 3 के बीच का जो लाइन होगा वो तुम्हारा 5 कंसिडर होगा, राइट. देन नेक्स्ट इज 2012 इज -2 हमारे डाउनवर्ड्स जाएगा. देखो ऐसे ये -2 का नंबर. देन 2013 इज 4, देन 2014 इज 8 एंड 2015 इज 6. अब एग्जैक्टली वही दिया हुआ है जो हमने इवन नंबर्स दिया. जैसे 5 का एक प्रॉब्लम आता है तो 2.5 कंसिडर करेंगे हम लोग, और 4 के बाद 2.5 लाइन 2.5 लाइन होता है ना वो कंसिडर करेंगे हम 5 के लिए, राइट. Then you have to write the scale, that is x-axis year and on y-axis 1 centimeter equal to 2 crore rupees, right. This is a simple diagram only na. So this way you have to draw your second sum. Now let's see our third sum. Okay. See, changes in the price of shares of the 5 companies at a Mumbai Stock Exchange during an
during an interval of 15 days are as follows. Present them in a suitable diagram. See, here two data are given. So we will go for a multiple bar diagram, right? So here in the multiple bar diagram, according to the theory, what we have seen that we have to arrange them in ascending or a descending order. According to the theory, they are saying that you have to arrange them in ascending or descending order. Otherwise, you can. I told you that you can draw as it is. How it is given, like this only you can draw. No need of arranging. बिना arrange किए हुए भी तुम लोग draw कर सकते हो, right? So the company is A, B, C, D, E, and price of share is in rupees. That is in rupees. That is 40, 20, 100, 80, and 30. And the price of the same share after 15 days in rupees is 60, 30, 150, 60, and 10. Now, so this is your question. Now let's move to our graph. Okay. Setting करना भी जरूरी होता है ना. Question ही नहीं दिखता तो फिर कैसे explain? See our graph, right? First of all, you have to give the heading. That is multiple bar diagram showing the closing price of the shares of different five companies of Mumbai Stock Exchange. Right now on x-axis you have to write the name of company, that is A, B, C, D, and y-axis you have to write. See here minimum. I told you always you have to find the minimum and the maximum number. So the minimum is 10 and the maximum is 150, right? तो 10, 20, 30, 40 जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत लॉन्ग नंबर्स बहुत सारे हो जाएंगे, राइट? तो वी विल गो फॉर 20 20 के डिफरेंस लेंगे. 20, 60, 80, 100, देन 120, 140, 150 एंड 160, 140 एंड 160, राइट? ऐसे हम लोग लेंगे. सी ऐसे लिया. अगर तुम पूछोगे कि अगर 50 का डिफरेंस लेंगे तो 50 का डिफरेंस लेंगे तो 3 ही बनेगा. 50, 100, 150. तो ऐसा नहीं, थोड़े बहुत तो नंबर्स चाहिए. अगर तो एकदम ही छोटा बनाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्लियर नहीं होता, राइट? तो फर्स्ट इज फॉर ए, कंपनी ए, प्रॉफिट इज 40 एंड 60. तो सी प्रॉफिट इज 40 एंड 60, राइट? देन इन कंपनी बी 20 एंड 30. देखो ये 20 है और ये 30 कहाँ पर आया? 20 के बाद 30 एक ही है, एक ही नंबर है. 20 और 40 के बीच में 30 आता है तो वही 2.5. टू नंबर, टू लाइन के बाद और 3 लाइन, 2 और 3 लाइन के बीच में का लाइन लेना है तुमको. इसमें अगर गैप के बीच में सिर्फ एक ही नंबर होता है ना, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है ना, तो वो 2.5 तो हमेशा याद रखना. अगर जैसे 4 और 6 के बीच में एक ही नंबर आना था 5, तो हमने वो 2.5 का कंसेप्ट लिया. दो नंबर 2.5 मतलब 2 लाइन, 2.5 लाइन, 2.5 लाइन मतलब 2 लाइन और उसके बाद थर्ड और सेकेंड लाइन के बीच में से हमें लाइन ड्रॉ करना है, उसको हमने 2.5 बोला है. इसमें भी वैसा ही है. 30 बोला है इसलिए 2.5 का कंसेप्ट लिया है, राइट? 20 एंड 40 के बीच में 30 आना है, एक ही नंबर आना है, दैट इज 30. वो उसको हमने तो कैसे लेना है? 2.5 के तरीके से. देन इज 100 एंड 150. तो one is 100 and second is 150. 140 और 160 के बीच में आता है ना 150, तो वो भी 2.5 का कंसेप्ट लेके चलना है ना. 2 लाइन और 2 और 3 के बीच का लाइन, दैट इज 2.5. then 80 and 60, that we will get directly 80 and 60. then is 30 and 10, वो फिर से 2.5 होगा. 20 और 40 के बीच में 2.5 लाइन. देन उसके बाद में 10 दिया है, वो भी 2.5 लाइन लेना है, 2.5 के बाद वाला लेना है. समझ में आया? यहाँ पे हमने तीन चीज देखा है, एक तो 150 वाला देखा है, 30 वाला देखा है, 10 वाला देखा. तीनों को 2 लाइन के बाद और 2 और 3 के बीच का लाइन ही हमको ड्रॉ करना है. वो हो जाएगा हमारा 30 ले लो, 10 ले लो, या फिर तुम ले लो 150, राइट? ऐसे होगा, ठीक है? तो इधर ये तीन चीज लिया है, तीन चीज में तुमको मिस्टेक नहीं करना और ये एकदम माइन्यूटली चेकिंग होता है. अब ये मत सोचना कि हम लोग कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे हमारा ग्राफ बहुत नीट है मिस तो ऐसे मार्क्स दे देते. ऐसा नहीं है, हम लोग सारा ग्राफ एकदम अच्छे से चेक करते हैं ना. माइन्यूटली एक पॉइंट इसमें चेक करना ही होता है. क्या हमको पता है कि इसमें क्या पॉइंट चेक करना है, बस वही हम लोग चेक कर लेते हैं. हमको पता है तुम लोग मिस्टेक कहाँ कर सकते हो, और जहाँ मिस्टेक करते हो वैसे ही सब दिया जाता है एग्जाम में, है ना. टीचर्स की थिंकिंग देखो कैसी है.
अब है नेक्स्ट, अब है नेक्स्ट question. We will go for the next question. Let's rub all these things. Now is our fourth sum. See, here information regarding the birth rate and the death rate of 5 countries is as under presented by a suitable diagram. Again suitable diagram बोला है, दो डेटा दिया है, so क्या करना है हमको, मल्टीपल बार डायग्राम. और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, see all the numbers are in decimal. So be careful like this sums. Please be careful while doing like this type of sums, right? And most probably this type of sums were asked. अभी मैंने कहा ना, मिस्टेक्स जहाँ ज्यादा होता है वही पूछा जाता है, राइट? तो ज्यादा उसी में जो कई स्टूडेंट्स का एक हैबिट होता है कि जो सम्स इजी है ना तो उसी को ही करते हैं, 10 बार कर लेंगे, 12 बार कर लेंगे, 15 बार कर लेंगे, लेकिन जो हार्ड है उसकी तरफ देखते ही नहीं. फिर बोलते मुझे सब आता है, स्टेज में मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं आता. लेकिन भाई जो नहीं आता है उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, जो आता है वही तुम प्रैक्टिस करोगे. अभी कल एग्जाम है, आज प्रैक्टिस करने बैठे हो, क्या प्रैक्टिस किया है, मेरे को सब आता है, और जो समझ लो उसमें से एक आधा सम हार्ड वाला पूछ लिया, बस इसके अलावा मुझे सब कुछ आता है. ये नहीं होता बेटा, सारा पढ़ना पड़ता है अपने को, ना? सब करना है, सारे सम्स करने. तो टीचर्स बैठे ना आप लोग का डाउट क्लियर करने के लिए. जो है डाउट जब भी है, देखो टीचर्स ने अगर तुमने मैसेज किया और तुरंत रिप्लाई नहीं किया तो ऐसा मत सोचना कि टीचर्स रिप्लाई ही नहीं देते हैं. देंगे, टीचर्स कभी बिजी होते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद रिप्लाई देंगे. नहीं तो फिर से रिमाइंड करो, टीचर मैंने आपको एक मैसेज किया था, प्लीज आंसर मी. और वो भी टाइम लिमिट में ही आप लोग मैसेज करो, ठीक है? ठीक है, टीचर का भी प्रॉब्लम समझो. हम पढ़ने बैठते हैं वो टाइम, अभी आप लोग पढ़ने बैठ रहे हो वो टाइम में जरूरी है टीचर भी फ्री होंगे, है ना? इसलिए आप सोच समझ के टीचर से थोड़ा बात करना. टीचर्स आपके दुश्मन नहीं है ये सोच के बात करना है ना? टीचर्स कभी स्टूडेंट्स के दुश्मन होते हैं क्या? पेरेंट्स कभी बच्चों के दुश्मन होते हैं क्या? नहीं ना, बस यही है. ठीक है, चलो अब हमें क्या देखना है, डायग्राम, राइट? क्वेश्चन देख लिया, अब डायग्राम की तरफ जाते हैं. चलो, पूरा आ भी नहीं रहा है. ओके, जर्मनी. चलो, this is a multiple bar diagram, and children here the minimum number is 10.2 and the maximum number is 34.2, है ना? 10.2 और 34.2. और हमें यहाँ पर कितने कंट्रीज दी है? 5, दैट इज यूएसए, जापान, इंडिया, जर्मनी एंड यूके, राइट? अच्छी अच्छी कंट्रीज है, बड़ी बड़ी. यहाँ पे चाइना नहीं है, देखो चाइना को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे. अब है x axis पे we have taken all the countries name, and on y axis you have to take the numbers, that is birth rate and death rate, right? I told you that the minimum and maximum numbers you have to see first. So the minimum number is 10.2 something, right? So 10, यहाँ पे round up number ही लेंगे हम लोग हमेशा. We will take the round up number, not in a decimal. We won't take any numbers like decimal numbers. We won't take on y axis, right? So first is USA, birth rate is 16.5 and the death rate is 10.2. So let's see 16.5. अब देखो 15 और 20 के बीच में डिस्टेंस है 5 और हमारे पास लाइन भी 5 है, यानी एक लाइन को जैसे सेकेंड लाइन 15 के बाद का जो छोटा लाइन है ना, दैट इज 16, देन 17, देन 18, देन 19, देन 20, राइट? अब यहाँ पर क्या बोला है 16.5. सी 16.5 होगा तो 15 के बाद का जो लाइन है वो है 16 और उसके ऊपर का लाइन लेना है. देखो यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, ये जो लाइन है तुम्हारा 15 है, इसके ऊपर का जो लाइन होगा वो 15.5 है. ऑब्वियसली यू कैन सी द मिस्टेक क्लियरली, राइट? जो इसमें दिया है वो राइट होना जरूरी नहीं है. यू आर सी हियर इट इज गिवन दैट 16.5. तो 16.5 इज 15 के जस्ट बाद वाला जो छोटा लाइन होता है
जो बोल्ड में दिया है उसके अलावा जो लाइन है दैट इज अवर 16 आई विल शो यू दैट सी दिस इज योर 16th लाइन ये 16th लाइन है ना और ये जो है अपना ये है 17th लाइन तो ये इसके बीच का जो लाइन होता है ना ये होता है हमारा 16.5 समझ में आ रहा है एक मिनट है एक बार और समझा देखो ये जो बीच का लाइन है नहीं जो मेरे दोनों के बीच का अभी मैं ऐसे ड्रॉ करूंगी ना तो वो मर्ज हो रहा है सी हियर आई हैव ड्रॉन टू लाइंस ना इन बिटवीन दिस टू लाइन कम्स द 16.5 so this is little bit mistakes they have done right so this is 16.5 here I told you where I am marking na that is 16.5 then is 10.2 see here 10 then 10.2 तो 10 से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करते हैं ना दैट इज 10.2 10.2 3 4 5 जो भी होगा लेकिन उससे थोड़ा बीच में ऐसे या थोड़ा ऊपर नीचे करके ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्टली हमें 10.2 नहीं मिलेगा तो 10 और 11 के बीच में 10 से थोड़ा सा ऊपर अगर 10.4 बोलेंगे उससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा ऐसे थोड़ा सा वेरिएशन दिखाना है हमको है ना तो 10.2 देन इन जापान है साइड है ना जापान 20.8 एंड 12.2 सी 20.8 तो 20.8 होगा तो कितना होगा 21 के पास में आएगा ना देखो ये एकदम करेक्ट ड्रॉ किया है ना फिर 12.2 होगा तो 10 के बाद 11 12 और 12.2 होता है तो 12 से थोड़ा सा ऊपर देखो राइट देन 34.2 हियर 34 है तो ये 34th लाइन है ये वाला हमारा ये 34th लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस और 20.4 है तो 20.4 मीन्स ये 20.4 का लाइन आ जाता है और इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा 20.4 34.2 right see here also they have done mistake नहीं ये राइट है 20.4 मैंने 24 लिया ना 20.4 है तो ये 20 और 21 के ऊपर जाएगा ये इधर आएगा राइट फिर है 16.4 16 कहाँ आएगा यहाँ पे 15 के बाद जो है 16.4 होगा तो मैंने बताया था कैसे आएगा देन 10.3 देखो ये 10 है तो उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर है 10 पॉइंट देन 15.2 where is 15 see here it is 15 15.2 means 15 ये लाइन और ये लाइन के बीच में आएगा 15.2 right then 12 exactly they have given 12 so 12 कहाँ आएगा 10 10 के बाद से next 11 then next is 12 तो ये 12 वाला लाइन है हमारा right so this is minutely they have given the number so be careful while drawing the diagram okay so understood now then afterwards what we have to show here in multiple bar diagram you have to show the shadings which shadings you have used so here that they have shown birth rate के लिए क्या shading लिया death rate के लिए क्या shading लिया and x axis scale है x axis is country and on y axis we have taken 1 centimeter और लिख भी सकते हो on y axis what you have taken birth rate and death rate ठीक है y एक्सिस लिख के डैश डाल के लिखो बर्थ रेट एंड डेथ रेट उसके नीचे लिखो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 यूनिट राइट ऐसे भी लिख सकते हो स्केल में ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा लिखा है तो यही लिखना ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ ये चीज है कि वो स्केल एक हेडिंग है वो उधर आना चाहिए और एक्स एक्सिस पे क्या क्या लिया है वो और वाई एक्सिस पे क्या क्या लिया है वो ऐसा सब हर चीज को रटने नहीं जाना होता अब 11th स्टैंडर्ड में बड़े हो गए रटना नहीं है ये सब चीज रटना नहीं है समझो और अपना लैंग्वेज इम्प्रूव योर लैंग्वेज या राइट हाउ यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स इम्प्रूव दैट थिंग पूरा दिन गेम खेलते हो ना उसमें गूगल में जरा सर्च करो हाउ टू इम्प्रूव आवर स्किल राइटिंग स्किल ये सब चीज करना होता है पूरा दिन गेम खेलना या फालतू की चीजें नहीं देखनी होती अपनी पढ़ाई से रिलेटेड भी कभी गूगल में सर्च कर लिया करो एडिक्शन इज अ वेरी बैड हैबिट क्या बोलते हैं वो गेम का नाम क्या है पता पबजी हाँ वो नहीं खेलना उसके वजह से क्या क्या होता है because of that one time in that news one thing came that the students those one
boy, he is of I think of 16 years, 15 or 16 years of age. He got attacked. कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक आया उसको, बाय बिकॉज ऑफ द पबजी। पबजी में वो इतना ये हो गया था कि वो हार गया ना वो गेम, उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक आ गया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग प्लीज डोंट प्ले पबजी। और अगर कोई गेम खेल रहे हो ना तो वो हमारा दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, ना कि हमें उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होना। इफ यू आर प्लेइंग ऑल दिस टाइप ऑफ गेम्स एंड इन्वॉल्विंग इन दैट ना, यू विल बिकम इरिटेटेड। इसके पेरेंट्स बुलाते हैं, मम्मी किसी काम के लिए बुला रही है, कुछ बोल रहे हैं कोई भी, तो इरिटेशन बहुत हो जाता है, तो हमारे इरिटेशन लेवल उससे बढ़ता है, राइट। सो प्लीज डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन ऑल दिस फालतू की चीजें, है ना। बड़े हो गए हो ना, अभी समझदार हो गए, हमको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जानने का अभी एज ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें वो सब चीज अवॉइड करना चाहिए जो हमको नुकसान पहुंचाता है। देखो तुमको क्या नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हें पता है ना। हम किस चीज से एडिक्टेड हो रहे हैं, वो चीज के बारे में सिर्फ तुमको पता है, हमको नहीं पता। मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे किस चीज से एडिक्टेड हो रहे हैं। सिर्फ मैं देख सकती हूँ हाँ ये लोग ये कर रहे, ये रोक सकती हूँ, लेकिन तुम अंदर ही अंदर किसी और चीज के साथ एडिक्शन हो रहा है, किसी गेम से, किसी और चीज से, तो वो तुम्हें हटाना, अपना कॉन्सेंट्रेशन उस पे से हटाना है। कैसे हटाया जाता है कि हमको किसी और बुरी चीज पे से ध्यान हटा के किसी अच्छी चीज पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, राइट। ऐसे कई अच्छी चीजें हैं गेम्स के अलावा दुनिया में, राइट। अभी तुम्हारा टाइम आ गया बॉयज को, तो एक अभी टाइम हो गया है कि अभी फोकस करो अपने फ्यूचर पे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। चलो उसके ऊपर सर्च करो तुम कि हमें क्या क्या करना है। अभी नेक्स्ट तुम्हारा प्रोजेक्ट वही है, व्हाट यू वांट टू बिकम, है ना। तुम्हारा ड्रीम क्या है, मैं एक प्रोजेक्ट दूंगी उसके ऊपर, मुझे एकदम अच्छे से सब बताना तुम्हारा प्रोजेक्ट ड्रीम क्या है। और तुम्हें अगर तुम्हें सपोज अगर एक टीचर बनना है किसी भी लड़की को, तो टीचर है तो टीचिंग लाइन में तुम्हारा क्या किया जाता है, क्या होता है, ये सब चीज सोचना होता है। आगे जाके तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, ये सब चीज आप लोग को सोचना, राइट। so for today this much is enough, so we will go for 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Okay, so this much is enough for today. So we have done 3 or 4 sums now, so this much is enough. I think your concept is a little bit clear from this today's example. Okay, so this much is enough for today. Please do the sums in your graph notebook. Okay, जो मैंने बातें कही है प्लीज सुनो उसे अच्छे से ध्यान से। Okay, thank you so much for today. Bye.